Assalamu alaikum to all of you. Is my voice coming to all of you? My voice coming to all of you? Okay. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So now we are going to talk, read some text from the prologue. It is the beginning, as I've told you, of it is the introduction probably to the poems, and in which Chaucer is telling us about the poems and about the characters and about the things which I've already mentioned. So you can see here the language, how difficult it is to understand. But here, good thing is that after the every line you will find its paraphrase, and that paraphrase has made things easy for us. So can you everyone see? It is from the website of हार्वर्ड जेफरी चॉसर्स वेबसाइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. तो उसके टेक्स्ट आपको आराम से मिल जाएगा नेट से, कहीं से भी मिल जाएगा आपको. So you can see here the opening line in which how he starts when that April with his showers shoot means when April with its sweet smelling showers. This is the paraphrase of modern English. The drought of March had proceed to the root. Suit, root. This is called heroic couplet, in which first line rhyme with the fourth line, second line rhyme with the third line, or first line rhyme with the second line as well. Just like you can see here, soothe, root, liquor, flower, breathe, heat. बात समझ आ रही है? This is called heroic couplet. So the drought of March had proceed to the root means has pierced the drought of March to the root. And number three, line number three, and bath every vein in such liquor means bath every vein means plants in such liquid. Liquid here means लिक्विड. बात मीन्स नला देना, यानी कि पानी इस पर इतना आना कि एक तरह से लग रहा हो कि वो नहा मतलब वो नहा गई हो, या वो नहा गया हो. Of which virtue in gender is the flower, by which power the flower is created. So what is Chaucer is telling us here? Here is he's saying that when April with his sweet showers has pierced to the root the dryness of March. He's talking about the month of April. And remember, we are talking about their, weather. We are talking about their, system. So when April with his sweet showers मतलब जो अप्रैल के महीने में जो बारिश होती है, spears to the root the dryness of March. तो dryness of March जो होती है वो खत्म होती है, एंड बात एवरी वेन इन दैट मॉइस्चर, और हर चीज़ उसमें, हर पौधे वगैरह सब उसमें नहा जाते हैं. ऑफ द क्विकनिंग पावर ऑफ विच इज बोर्न द फ्लावर. So of which virtue engendered is the flower. So by which power the flower is created, जिससे फल वगैरह, जिससे फूल वगैरह जो है वो क्रिएट होते हैं, यानी कि नए निकलते हैं. When Zephyrus speak with his sweet breath, when Zephyrus eke with his sweet breath. Now here Zephyrus means west wind. यहाँ पे Zephyrus के में इससे Zephyrus means west wind. So when the west wind also with its sweet breath inspired hath in every hot and heath, in every wood and field has breath life into. जब वो हर फील्ड को, हर जगह जो है वो एक नई जिंदगी दे देती है. मीन्स everything becomes very blooming. Everything seems that as if that thing has got a new life. Now you can see how difficult is the language to understand. ये तो आपके पास पैराफ्रेज है इसलिए आपको समझ आ रहा होगा, वरना तो ये आसानी से समझ में नहीं आता. The tender crops and the young sun. The tender crops and the young sun. What does it mean? The tender new leaves means नए नए जो पत्ते होते हैं उनको tender new leaves कहा गया है. The tender new leaves and the young sun. Young sun means सूरज की बात कर रहे हैं जो नया नया निकलता है.
hath in the ram his half course run. Has run half its course in Aries. सर Yes. आसन को एक्चुअली पता नहीं है तो वो माइक ऑन नहीं कर सकता, ऑफ नहीं कर सकता। हाँ तो उसको फिर बताओ ना भाई कि माइक ऑन करना होता है और माइक को जो है वो आप म्यूट कर दें। अब माइक को म्यूट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आवाज़ें उनकी हमारे को हमें आएंगी और हम डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो उनको तो इतना पता होना चाहिए ना, यू शुड नो अबाउट सच थिंग्स। सर उसको मैंने मैसेज भी किए हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा। ये तो यार बहुत अजीब सी बात है क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा उन्हें। मिस्टर आसान, कैन यू हियर मी? यस सर। यार प्लीज म्यूट द माइक, माइक को म्यूट कर दें। अगर म्यूट का ऑप्शन होगा उससे माइक को म्यूट कर दें, अपने माइक को बंद कर दें। हाँ, सर माइक को इसे म्यूट कर दें। इसे मैं अपनी अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जी जी। चलो सही है सर, उसने अभी बंद ही कर दिया है। हाँ बस ठीक है, अच्छी बात है। माइक को म्यूट कर दें ताकि आप मतलब डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ ना हो। यू नो व्हेन यू हैव टू आस्क एनीथिंग एल्स यू कैन अनम्यूट योर माइक। अगर घर में तो घर वालों से आप रिक्वेस्ट, अब मैं भी घर से क्लास ले रहा हूँ, आप अपने बच्चों को खामोश करता हूँ बाज़ औक़ात उनको मैं मतलब ये कि काफ़ी डराता हूँ कि भाई खामोश हो जाओ। हालांकि वो शैतानियाँ भी करते हैं, ज़ाहिर है इतने बड़े घर थोड़ी होते हैं, बाज़ औक़ात कमरे के अंदर से क्लास देनी पड़ती है, तो हमें ये सब मैनेज करना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो मैं आपको बता रहा था कि दीज आर द लाइन्स, दिस इज व्हाट वी हैव इन द कैंटरबरी टेल्स। सो लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाई? बिकॉज इट इज मिडिल इंग्लिश, इट इज नॉट इवन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश स्टार्टेड फ्रॉम 16th सेंचुरी विद रेनेसा। वो हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश थी, और आज हमारे पास उसकी जो शक्ल है अंग्रेजी की वो उस मॉडर्न इंग्लिश से है। एंड वी हैव नो मोर मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड हो चुकी थी, एंड देन मॉडर्न इंग्लिश started. So Chaucer's this prologue to the Canterbury Tales, and this long narrative poem is written in Middle English. That's why it is difficult to understand language. फिर क्या कह रहे हैं नंबर 10, that slept in all the night with open ye. So those that sleep all the night with open eyes, he's talking about line number 9, and small fowls make melody. So when you read Chaucer's poetry, you will also find here a little romance. Line number 11, so pricketh him nature in her courageous. So nature inside them in their hearts. नेचर की बात करें कि वो इंसाइट करता है, वो इंसान को काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील करवाता है। देन लॉन्ग एंड फॉक टू गोन ऑन पिलग्रिमेज। सो देन फॉक लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रिमेज। फिर लोग जो है पिलग्रिमेज वगैरह के लिए भी जाते हैं, मौसम अच्छा होता है तो लोग दूर दूर दराज सफ़र को भी जाते हैं, और जैसे ज़ियारत हो गई और दीगर जगहों पर भी जाना पसंद करते हैं। एंड पामर्स फॉर टू सेकेंड स्ट्रेंग स्ट्रॉन्डिस एंड प्रोफेशनल पिलग्रिम्स, लाइन नंबर 13, एंड प्रोफेशनल पिलग्रिम्स टू सीक फॉरेन शोर्स। और जो प्रोफेशनल पिलग्रिम्स होते हैं यानी कि जिनका जो अक्सर जाते रहते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू चॉसर प्रोफेशनल। तो वो जो है फॉरेन शोर्स यानी कि फॉरेन जो बाहर की जगह वहाँ उन जगहों को भी जाना पसंद करते हैं। नंबर 14, टू फर्न हॉल कॉथ इन सॉन्ड्रे लॉन्ड्स। तो इसका क्या मतलब है? टू डिस्टेंट श्राइन्स, जैसे ये लोग जा रहे हैं अभी कैंटरबरी। सो टू डिस्टेंट श्राइन्स नॉन इन वेरियस लैंड, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ श्राइन्स होते हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं। एंड स्पेशली फ्राम एवरी शायर्स एंड of England to Canterbury they went. So, and especially from every shires end of England to Canterbury they travel. तो हर जगह से Canterbury की तरफ लोग जाते हैं और ट्रेवल करते हैं। क्यों करते हैं? टू सीक द हॉली ब्लेसिड मार्टर, के टू द हॉली ब्लिसफुल मार्टर फॉर टू सेक। मतलब ये कि वो जो शहीद हुए थे ये लोग भी सेंट पर बिलीव करते हैं, तो उनसे जो है बरकत हासिल करने के लिए, टू सीक द हॉली ब्लेसिड मार्टर। Excuse me, sir. Yes. Sir, can you please define the line number 15 again? Line number 15. Okay. 15. How is it related to previous line 14? Just wait. Let me
Line number because he is 14. Yeah, too following distant. the rhythm of word. Stones and loans. Stone, line number 13 and 14, they both are rhyming. Line सर number ये तो दोनों ये इन दोनों की रिदम मैच हो रही है, लेकिन लाइन नंबर 14 और 15 का आपस में कोई नहीं जोड़ भी नहीं नहीं बन रहा है. लाइन नंबर 14 और 15 का थोड़ी जोड़ बनेगा. लाइन 13 और 14 का जोड़ है, एंड देन लाइन 15 एंड 16 दे बोथ आर राइमिंग. लाइन 17 एंड 18 दे आर राइमिंग. तो दो राइम करेंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा. दो राइम करेंगे तो उसी से मिलता जुलता तीसरा भी होगा. या तो लाइन देखिए, अगर चार मिसरे का एक कपलेट है तो उस वैसे कपलेट दो के होते हैं, लेकिन अगर चार के आपके पास है तो फर्स्ट और नॉर्मली जो है थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रहे होते हैं. एंड समटाइम यू विल फाइंड सेकंड एंड फोर्थ राइम, राइट. सो हियर यू विल फाइंड फर्स्ट टू आर राइमिंग, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड फोर्थ देन फिफ्थ सिक्स. तो यहाँ पे जो है 15 एंड 16 दे बोथ आर राइमिंग, एंड 17 एंड 18 दे आर राइमिंग. इज दिस क्लियर? यस सर. 19 को हम देख लेते हैं. बिफिल दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे, मीन्स इट हैपन दैट इन दैट सीजन ऑन वन डे. फिर ये बात करें साउथ वेक एट द टेबल इन एज आई ले, ही इज टॉकिंग अबाउट देयर स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी के वहाँ पे वो लोग जो है एक दिन वहाँ पर वो था, मौजूद था. I in South Wake at the Tabard Inn as lay. So in South Work at the Tabard as I lay, ready to wenden on my pilgrimage, ready to go on my pilgrimage. अपने सफ़र पर, pilgrimage कहते हैं होली जर्नी को, अपने सफ़र पर के लिए तैयार था. To Canterbury with full devout courage, to Canterbury with a very devout spirit, devout spirit यानी कि बहुत मजहबी जज्बे के तहत. Eight night was come into the hostelry. Eight night had come into the hostelry. Well 9 and 20 in a company, यानी कि वहाँ पे अच्छे खासे लोग और भी मुझे मिल गए. Of sundry folk by adventure या फिर of various sorts of people, मुख्तलिफ किस्म के लोग by chance fallen, जो कि by chance मुझे मिले. In fellowship and pilgrims were they all. So in fellowship and they were all pilgrims, और वो सब जो थे pilgrims थे. तो ये क्या कर रहा है, बता रहा है अपने कि how he met all of them and what then they decided to do. लाइन 27 को देखेंगे तो उसमें क्या, that toward Canterbury Walden ride. So who intended to ride toward Canterbury, जिन जो Canterbury की तरफ इंटेंड यानी कि उन्होंने नियत की थी कि कैंटरबरी की तरफ सफ़र करेंगे. The chambers and the stables were in white, so the bedrooms and the stables were spacious, both spacious से, and we were accommodated in the best way, and well we were an asset. अभी आप देखें and well we were an asset, कहीं से आपको समझ आता है कि इसका ये पैराफ्रेज होगा, यानी मतलब ये होगा and we were well accommodated in the best way. So you can see how difficult सर the क्या ये language is. लैटिन और ग्रीक वर्ड यूज हुए हैं? सर Actually, we cannot say here there might be some words from Latin and Greek, but this is the shape or form of Middle English. ये Middle English की एक बहुत एडवांस फॉर्म है. आप मिडिल इंग्लिश को आप देखेंगे तो उसमें आपको तो बहुत मुश्किल होगी, बट दिस इज प्रोबेबली द एडवांस फॉर्म ऑफ मिडिल इंग्लिश इन विच चौसर wrote this poem. And credit goes to Shakespeare, sorry चौसर के उसने इंग्लिश का इस्तेमाल किया, वरना वो दौर ऐसा था जब फ्रेंच का यूज़ हो रहा था. एंड ऑफ कोर्स French and even Latin language was used for writing, religious sort of writing. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, in which the way in which he's writing his rhythms in his write-up, can we relate to his write-up to the Rumi? No, we cannot actually say like this. Actually, you are, of course, it is difficult to understand. I'll definitely not ask you to write lines from Chaucer. It is only for you to understand that how difficult English was, or what was English. What was the form of English? What was the shape of English that time? Just it is to make you understand, and how Chaucer used English. The main thing that we learn here about his characterization and about his other skills, how he defines things. Whereas language 600 साल पुरानी है,
तो 6 या 650 साल पुरानी, तो ज़ाहिर है उसमें आप 100 साल पुरानी लैंग्वेज उठा के देख लेंगे, यू विल फाइंड great changes. So this is, you know, the beginning of English, modern English. Remember, this is the beginning of modern English. For example, ये यहाँ इसको बताता है, he is telling us about that particular you know setting, कि वो किस तरह से शुरू करते हैं और किस तरह से अपना प्लान करते हैं, how they plan to go to Canterbury. So आगे आपको फिर ये डिसाइड करते हैं कि कौन पहले मतलब चौसर इज टेलिंग अस अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो जो सबसे पहले कैरेक्टर होता है वो होता है नाइट का, जिसके बारे में बताते हैं। तो हम उस नाइट के कैरेक्टर, अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टराइजेशन की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टराइजेशन, हाउ इज टॉकिंग, ही डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टर। तो फर्स्ट जो था वो नाइट था। नाइट के बारे में क्या कहता है उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अ नाइट देयर वाज एंड दैट अ वर्दी मैन। क्या मतलब है इसका? अ नाइट देयर वाज एंड दैट वाज अ वर्दी मैन, यानी कि बहुत अहम है। इफ यू टॉक अबाउट मिडल एजेस, सो यू विल फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट वाज ग्रेट। जिस तरह आज हमारे मुल्क का जो क्या कहेंगे हम, कमांडर, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी चीफ को जितनी इज्जत हम देते हैं और आर्मी चीफ की जितना मुकाम हमारे दिलों में है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज स्टेटस रैंक इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट फॉर आवर आर्मी चीफ। सो द सेम थिंग यू विल फाइंड विद द नाइट इन मिडिल एजेस, राइट? नाइट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। So a night there was, and that worthy man, line number 44, that from the time that he first being, so क्या मतलब है इसका? Who from the time that he first began to write out he loved chivalry. To write out he loved chivalry. Chivalry means a kind of, you know, bravery. Chivalry means a kind of bravery which is associated with especially, you know, these knights and soldiers, especially if you talk about middle ages. Truth and honor, freedom and courtesy. So it means fidelity, wafadari and good reputation, generosity and courtesy. Generosity कहते हैं सखावत को, good reputation means you know very well, and courtesy means politeness. All these things are related to the knight. Full worthy was he in his lord's wear. 47 means he was very worthy in his lord's war, यानी कि वो अपने जो मालिक, यानी कि अब ज़ाहिर रूलर के लिए या अपने किंग के लिए जो वॉर में हिस्सा लेता है, सो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 48 and thereto had he ridden no man fared, so and for that he had ridden no man further, as well in Christendom as in heathens, as well in Christendom as in heathen lands. So here it's talking about religious purpose, कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए भी कितना बहादुरी से लड़ता है। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द नाइट। नाइट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट, एंड स्पेशली कीपिंग इन माइंड दैट मिडिल यू नो एज chivalry, and keeping in mind that middle age characteristic. तो क्या कहता है कि देयर वाज अ नाइट। नाइट के बारे में इन लाइंस में जो इसके बताता है वो ये बताता है कि देयर वाज अ नाइट and a brave person he was a brave person, and he was from the time when he first rode abroad, yani loved knighthood, faithfulness and honor, liberty and courtesy. Knight was very valiant in his lord's war. Knight जो अपने lords यानी कि अपने king के लिए जब लड़ता है तो बहुत valiantly लड़ता है, and he had, you know, no man further, means he had campaign, he is outstanding. Then he further talks about the night. Night के बारे में मजीद बताता है। He was at Alexandria when it was won. At Alexandria he was when it was won. Means वो बताता है कि ये नाइट जो था Alexandria में था, तभी जाके वहाँ पर जीत नसीब हुई, फतह नसीब हुई। Full of time he had the board begone. So he had sat very many times in the place of honor, और कई मरतबा उसको बहुत honor यानी कि इज्जत भी दी गई। Above all nations in Prus means above knights of all nations in Prussia. He had campaigned in Lithuania and in Russia.
no Christian man of his rank so often. Even he says that even religious personalities are not as great as here is talking about knight. Line 56, in Grenade at the siege had he been. So also he had been in Grenada at the siege. यानी कि जब ग्रेनेडा का मासरा किया गया था उस वक्त ये मौजूद था. It means you can see his importance of Aljabrix and had written in Morocco. And और मोरक्को में भी वो गया और इन जगहों पे भी नाइट जाता रहा. So he is talking about the beauty, he's talking about the bravery, he's talking about the chivalry, he's talking about the, definitely positive aspects of the knight. Any question regarding this? तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं बता रहा कि आप लोग इसको देखकर पोएम को देखकर परेशान हो. I just want to tell you that how he's describing the characters, and of course you must see the language as well, and what heroic couplet is. You can see a very living example of heroic couplet here. After night, he's talking about yeoman. Yeah, does anybody have squire? The squire, he's talking about the squire. Does anybody have any question? Yes, does anybody have any question? Okay, let me mark your attendance first. First, let me mark the attendance of MA 8 batch, first semester. Mary Shazad? Is Mary Shazad present? No. Mohammad Hassan? Mohammad Shaban? Yes, sir. Mohammad Hassan present. Mohammad Shaban present. Mohammad Osama? Nadia Ramzan? Present, sir. Namra Nawaz? Narayan? Pratap Rai? राज मोहम्मद सर दाशारी? मदीहा मदीहा तो नहीं यहाँ पे कोई अभी तक. प्रताप राय? राज मोहम्मद दाशारी? राजा तनवीर? रिदाई जैनब? रिमशा नाज? सदफ हफीज? Present. ओके. सना? शाहिद अली? शाहनवाज? सोबिया? सऊदा? सैयद मुबशर शाह? तस्कीन मोहम्मद? उबैदुल्लाह? प्रेजेंट सर. उमामा? प्रेजेंट सर. उरूज? उज़ैर? उज़मा बीबी? Zahir Ahmed? Zebullah? Very few students present from section B. Okay. Nas Fatma? Present, sir. Shafqat Hussain? Sorry. Present. Present. Sorry. Quratul Ain? Present. Shabana Khan? Shakila? Shumaila? Sir, Kurutlan is present. Yes, yes. Present. Sir, Shakila present. Okay. Tawfiq Ahmed. Right. Now the attendance of section B. Sorry, section A. Section A. Abdul Qadir, Abdul Sattar, Present, sir. Eman Kausar, Alia. Present, sir. Okay, Alia, Amir Khan, Anita Sattar, Present, sir. Aksa Nas, Hariba, Asan, Present, sir. Hariba. प्रेजेंट सर. Present, sir. Ariba Rafi. Okay. Ashok Kumar, Atika, Present, sir. Present, sir. Baktun Nisa, Present, sir. Dilshad Majid, Iram, Faik Ali, Present, sir. Fatma, Present, sir. Fatma is present. okay, Hajra,
हनीफ रजाक, हनीफा, इकरा, इस्माहान ताज, जवेरिया, लक्ष्मण दास, मदिया अली, Present, sir. Sir, Lakshman is present. ओके मदिया अली, Present, sir. ओके मानूर, Sir, Madiha Ali present. या प्रेजेंट, मानूर इसाक, मंसूर अख्तर, मोहम्मद अमास, सादिया, फजल खालिक, Present, sir. सादिया, ओके फजल खालिक, अलीना, बिलाल, Present, sir. अलीना, ओके बिलाल, फातिमा मोहम्मद, इकबाल, कायनात बीवी, मानूर याकूब, प्रेजेंट, मलाइका, Present, sir. मंसूर Present. बिला, ओके यस प्रेजेंट, मंसूर बिला, मेवो, मुन्ना, ओके मोमना, मोहम्मद अकरम, ओके मार्क योर अटेंडेंस, Sir, मैं भी हूँ. नेम शुमाइला अरशद. माइला अरशद, ठीक. माइला अरशद हो गई आपकी भी, राइट, सर दिलशाद वजीर मेरा नाम है। ओके हेलो सर। यस प्लीज, सर मेरी प्रेजेंटेशन लगाए, प्रेजेंट लगाया। आपका नाम क्या है? नाम पुकारा था यार आपने, बोलना था ना, व्हाट्स योर नेम? दिलशाद वजीर। दिलशाद वजीर, जब नाम पुकारूं तब आप बता दिएगा, उसके बाद मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है? अभी तो मैं आपकी लगा रहा हूँ अटेंडेंस, बट बी केयरफुल व्हेन आई कॉल आउट योर नेम्स, यू शुड बी अलर्ट। दिलशाद वजीर, ओके, सो इज दिस क्लियर? सो ये आपके पास, अगर आपके पास पोएम है, बुक है, तो अच्छी बात है, यू कैन रीड फ्रॉम द बुक। ऑन वन साइड यू विल फाइंड योर ओरिजिनल टेक्स्ट, on the other side hand you will find the paraphrase. Paraphrase will make things easy for you. ओके, तो उसके ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उबैदुल्ला, मैं आपको रिमूव कर दूंगा भाई, फिर आप दोबारा ऐड भी नहीं करूंगा, फिर आप जाने और डिपार्टमेंट में सर साकिब जाने, ठीक है? तो काइंडली ऐसा मत करें, क्लास नहीं लेनी तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करा, यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी एब्सेंट लग जाएगी, बट डोंट डिस्टर्ब। ओके, इसके बाद जो कैरेक्टर है हमारे पास, द स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में क्या कहता है? विद हिम देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वायर। सो विद हिम देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वायर अ लवियर एंड अ लस्टी बैचलर, जिसके बारे में कहता है कि ही वाज अ लवर एंड अ लवली, ही इज अ लवर एंड अ लाइवली बैचलर। बैचलर मींस ही इज अनमैरिड। ही इज टॉकिंग अबाउट नाउ स्क्वायर। With locks cruel as they were laid in press, means with locks curled as if they had been laid in a curler. जैसे कुछ लड़के या लड़कियां, you'll find sometimes they curl their hair. So he's talking about that, son, young squire, that he has had his hair curled, locks बनाए हुए और वो curl किए हुए, of 20 year of age he was, I guess. So उसकी उम्र ही बता देता है कि he was 20 years of age, मतलब वो guess करता है, Chaucer is guessing here that he is 20 years of age. Yeah, excuse me. सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे आपने पहले इन द फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा था कि वैरायटी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, तो यहाँ पे ये दूसरा जो कैरेक्टर उसी से लिंक कर रहा है ना? Hello, yeah, kindly repeat your question please. सर आपने फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ाया था कि वैरायटी ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो चौसर हमेशा फॉलो करता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमने पढ़ा था नाइट कैरेक्टर्स और सेकंड जो है यंग स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों को इंटरलिंक कर रहा है ना ये? Actually, variety of character here means that you'll find here, if, in Chaucer's
prologue to the Canterbury Tales, you will find number of characters. Right now we have just started the second character. इसीलिए तो हमें अभी हमें इसका पता नहीं चलेगा. After this, we will do another character. So they all are matching with each other. The squire, the yeoman, नहीं सर, the knight. यहाँ पे But भी इसने when बिल्कुल मेंशन ही कर दिया है ना. In the 79th line you कह रहा है within him there was his son and young characters. That means he's relating this character to the previous character. relating, I don't understand. What does it mean relating? क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? Relating means? सर इसमें क्या जो है? फर्स्ट कैरेक्टर है ना उसी को ये दूसरा कैरेक्टर रिलेट कर रहा है ना. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट ही इज, यू नो, देयर मे बी सम सिमिलरिटीज, बट इट्स नॉट व्हाट ही इज यू आर टॉकिंग अबाउट कि वो पहले ही कैरेक्टर को रिपीट कर रहा है या उसी को के ऊपर चल रहा है. देयर मे बी सम सिमिलरिटीज ओके सर. लाइक अ लवर एंड अ लाइवली बैचलर. तो उसके बारे में, नाइट के बारे में तो थोड़ी कहता है कि ही इज अ लवर एंड अ लाइवली बैचलर. नाइट के बारे में ही डजंट से दैट नाइट विद लॉक्स कर्ल्ड एज दे हैड बीन लेड इन अ कर्लर. नाइट की एज भी नहीं बताई. हियर इज टेलिंग इज अबाउट द एज, ही इज गेसिंग के मेरे ख्याल में वो 20 साल का होगा. ठीक है. फिर मजीद आगे बताता है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रेचर कद के बारे में. ऑफ हिज स्ट्रेचर ही वाज ऑफ इवन लेंथ, ऑफ हिज स्ट्रेचर ही वाज ऑफ मॉडरेट हाइट, यानी कि ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था, ज़्यादा पस्त कद भी नहीं था. ही वाज ऑफ मॉडरेट हाइट. नाइट के बारे में ये चीज़ें नहीं बताता. एंड वंडरली डेलवर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ये भी बताता है कि 84 एंड वंडरफुली एजाइल एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ज़बरदस्त उसकी ताकत होती है, एजाइल फुर्तीला होता है. 85 and he had been Sompton in Chivashi, and he had been for a long time on a cavalry expedition. वो भी मतलब ये इधर उधर घूमता फिरता रहता है. And Flanders and Artois and Picardy, these are the places, and conducted himself well for so little a space of time, और अब बहुत कम टाइम में उसने बहुत कुछ किया. In hope to Stoughton in his Lady Grace, in hope to stand in his lady's good graces, यानी कि वो अपनी लेडी को, अपनी जो लेडी से मतलब अपनी मिस्ट्रेस को खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है. Embroidered was he as it were a meat. He was embroidered as it were a meat. Means you'll find here that he is being described in a different way. Does anybody have any question? Sir, Squire was a son of Knight. सतार सरगिणी हो सतार. सॉरी. Yes, son, his son. उनके साथ उसका बेटा भी था. Yes. Any other question? So that's what I was trying to say, that he is relating the character Squire to the previous character. Yeah. So this is actually, he's talking about Squire, the son of the knight, and Squire has different characteristics, different qualities, and knight had different qualities. कुछ चीज़ें उनमें सेम हो सकती हैं, but definitely they both have some different qualities as well. Yes. Any other question? So I would like you people to read some more characters, and there will be one more session on it, in which I will tell you about some more characters, and there are some very interesting characters. We will read those characters, the description of those characters. If you have any question, you kindly can ask me. Just think for a while, right? सतार यार ये गलत गाल है, विच में कॉल गलत रखने मानो.
अरविंद की चाहिए Yes, does anybody have any question? किसी को इस हवाले से कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है. Yes, Arya, we are very short of time. एक्सक्यूज मी सर. Yes, please. सर ये जो पूरा टेक्स्ट है ये किसी नॉवेल से निकाला गया है या कोई राइटअप ऐसा है जहाँ पर्टिकुलर वहाँ से इसने अपना राइटअप दिया था? यार ये टेक्स्ट ये पोएम है एक, ठीक है. द नेम ऑफ द पोएम इज द कैंटरबरी टेल्स. उसका ही हमारे पास जो हमारे पास कोर्स में है वो है प्रोलॉग, जिसको हमने पढ़ना है. एंड दैट प्रोलॉग इज टेलिंग अस अबाउट इट इज गिविंग अस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दोस 29 क्या कहेंगे हम पिलग्रिम्स का, एंड what they are intending to do, and their the description of that particular inn where they stayed, and few other things. So this prologue is telling us about those things. और उसके बाद जब So वो how उनके long कहानी, is so we are not going to do all. हमने इन सबको करना थोड़ी है. अगर ये करेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे इसमें. मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ. जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज द लैंग्वेज ऑफ चौसर एंड दिस इज हाउ ही इज डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर. तो एक क्लास में और मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को खुद ही करना होगा. आई विल जस्ट डिस्कस the character of some very few interesting character like the monk, religious जो character है, the monk, the friar, और इसमें हमें कर लेंगे the wife of bath को. ठीक है. तो इन चंद को हम कर लेंगे. देयर आर फ्यू मोर, देन आई विल लीव जस्ट लाइक द कुक कैरेक्टर को हम देख लेंगे, द वाइफ ऑफ बाथ को हम देख लेंगे, द वे ही हैज डिफाइंड द वाइफ ऑफ बाथ. दिस इज हाउ आई विल डू, एंड देन इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट हिज कैरेक्टराइजेशन. इसकी कैरेक्टराइजेशन, इसके रोशनी में हम विल डिस्कस हाउ ही कैरेक्टराइज हिज कैरेक्टराइजेशन, एंड विल डिस्कस आल्सो सम अदर एलिमेंट्स ऑफ हिज वर्क. दिस इज व्हाट वी विल डू. तो ये एक क्लास में ये करेंगे, 2-3 क्लासेस में वो होंगे, एंड देन दैट विल बी द एंड. ये सारी चीज़ें थोड़ी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, ये तो सिर्फ आपको सिर्फ बताया जा रहा है, बाकी आप ही ने करना होगा. तो सर ये लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है पोएम्स के अंदर? मिडिल इंग्लिश. मिडिल इंग्लिश. और मैंने गालिबन आपको बताया था, फिर रिमेंबर इन लेक्चर नंबर 3 दैट इट वाज अ टाइम व्हेन French and Latin language was used for writing any piece of literature, but it was credit goes to Chaucer that he used Middle English for writing a poem, and that poem is the Canterbury Tales, and that is why